So what you need to do first in advance before you start writing your papers, take 5-6 sheets and draw a margin here on your left side. Is this clear? Yes, sir. Why margin? Because when it is filed, after we take your printouts and then it will be filed or it will be stapled. Okay. And other than this, when we do the correction, we give marks on this side. So leave this much of space on your left hand side. Draw a margin in advance on each page. Then second thing, you will leave some top margin and you will leave some bottom margin. Yes, sir. You will always leave margin on top and at bottom also. Okay. So in that margin, what you can do is you can write your name, class, section, subject, and code. These 5 things. That is very important on each page. Now this is your first page. So what will be the page number? Page number 1. Now when you take second page, so same information once again, name, class, section, subject, code, and page number 2. Then on third page, same information, page number 3. How will it be helpful? When we take printouts? When we take printouts, see, if there are 35 students in your class, right now 23 attending. Yes, sir. If we have so many students and you have sent all your pages, now each student is sending some 5 or 6 pages. Okay. When we are taking printouts, there is a great possibility of having the sheets mixed up. Then how will I identify? How will anybody identify that whose sheet is this? So by It will name. be mixed up. Yes, that is why name and page number and everything is necessary. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. May I keep the sheet back in my drawer? सर A4 साइज की जगह सर जो A4 साइज की साइज में जो पेपर आते हैं जिनमें ऑलरेडी लाइंस होती हैं उनको यूज कर सकते हैं. वही तो मैंने बोला अभी, वो मिले तो ज्यादा अच्छा है. लाइन वाला रहेगा ना, A4 साइज में ही आता है लाइंड पेपर, रूल्ड पेजेस जिनको बोलते हैं हम, जो प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए आते हैं, बायो प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए आते हैं. If you are able to get that, that will be best for you because lines are already drawn, so it will be easier for you, convenient for you to write your answers quickly and clearly. If you can manage to get those papers, fine. If you cannot, use this kind of blank papers, unruled pages. Okay. So if you can get line wale paper, which we call ruled papers, okay, use that. Good thing is if you use A4 size paper. Why? When you scan A4 size paper and when we take a printout, then there is no change in the size of your fonts or the way you write. It will not be squeezed. But if you take a longer paper, say A3 size, that is longer. If you write on that and take a photograph of that or scan that and then you send me, when I am taking printout, what happens? That printout will be taken on A4 size paper. Do you understand this thing? Yes, sir. समझ में आ रही है मेरी बात? ये A3 साइज है, बड़ा साइज है. ओके. और प्रिंट आउट आपने अगर पूरे के ऊपर लिख दिया और इसकी फोटो खींच के इसका PDF में कन्वर्ट करके आपने भेज दिया, लेकिन प्रिंट आउट जो निकलेंगे प्रिंटर में वो सारे A4 पे निकलेंगे. A4 साइज अभी मैंने आपको दिखाया था, वो उसकी लेंथ यहीं तक रहती है, इतना नीचे एक्स्ट्रा है. बट आपने अगर यहां तक लिख रखा है, तो जब इसका प्रिंट आउट हम A4 में लेने जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? या तो का प्रिंट नहीं होगा. यस. उसमें अगर हमने मार्जिन सेट कर दिया है ना, तो ये इसको स्क्वीज कर देगा और A4 साइज पे ले लेगा. ठीक है, A4 पे ले लेगा इसको स्क्वीज करके. बट हर एक के लिए अलग अलग कमांड दो. अच्छा, अब जब इतने लंबे पेपर को स्क्वीज करके यहां तक ले आए, तो इसका मतलब जो आपने यहाँ लिखा है वो सारे का साइज कैसा हो गया? छोटा हो गया. ठीक है. तो वहां फिर उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी, मुश्किल होगा उसको रीड कर पाना, है ना. दूसरा, अगर स्क्वीज नहीं किया
तो ये नीचे की लाइंस कट जाएंगी, उसमें आएंगी नहीं। तो इसलिए आप A4 साइज यूज करना, मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा A4 साइज में ही पेपर्स आपको मिल जाते हैं, सबसे इजीली मिलते हैं। प्रैक्टिकल फाइल का पेज ले लेना लाइन वाला, या फिर ब्लैंक प्लेन जो फोटोकॉपी में प्रिंट आउट के लिए यूज होता है वो ले सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेफ्ट साइड में मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, इंफॉर्मेशन में ये सब एडवांस में लिख के रख लेना, नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, रोल नंबर एंड पेज नंबर। रोल नंबर मीन्स दैट कोड विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, मैं क्लास के बाद शेयर करूंगा आज, ठीक है। जिन बच्चों ने अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और नेम्स मेरे उस पर नहीं सेंड किए हैं, पर्सनल मतलब वही जो स्कूल में रजिस्टर्ड है विद योर नेम, तो मैं अपने इसमें सेव कर लूंगा सर मेरा तो सर है ना सर आपके सारे। पास? हाँ तो हाँ, मेरा तो सर है ना, तो बार मेरा भेज भी तो चुका है तो दोबारा, हाँ है भी और भेज चुका है, मैंने सेव कर लिया। मैक्सिमम बच्चों के नंबर्स मैंने सेव कर लिए जितने बच्चों ने कल भेजे थे, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के बाकी हैं। अगर मेरे पास पर्सनल नंबर आ जाएगा तो मैं कोड शेयर कर दूंगा, पर्सनल नंबर नहीं आएगा तो मैं कोड शेयर कैसे करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किस बच्चे का नंबर है तो मैं कोड शेयर करूंगा? स्कूल का आपका जो क्लास ग्रुप है उसमें वो सारे नंबर्स हैं, बट मेरे पास तो बाय नेम सेव नहीं है ना, तो फिर मैं आपका कोड किसी और के नंबर पे शेयर करने की रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है अपना नाम और वही वाला व्हाट्सएप नंबर जो स्कूल में रजिस्टर्ड है दे दो, तो मैं उसे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लूंगा, ताकि मैं आपके साथ वो जो आपका कोड है वो आपको पोस्ट कर सकूं पर्सनल नंबर। सर हर सब्जेक्ट का कोड अलग होगा? हैव आई मेड ऑल दीस थिंग्स क्लियर? यस सर। नो बेटा, आपका हर स्टूडेंट का कोड अलग होगा, हर स्टूडेंट का कोड अलग होगा, सब्जेक्ट का नहीं होगा अलग अलग। आपका वही, जैसे सुनो, आपको अपना कोड वैसे ही यूज करना है जैसे आप अपना रोल नंबर यूज करते हो, ओके। द वे यू यूज योर रोल नंबर, जस्ट वो रोल नंबर ही है, आप ये कह सकते हो। भाई एग्जाम में आपको रोल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। हमेशा? यस सर। यस सर। यस यस सर। और नो? बस तो वैसे मिल रहा है आपको, वैसे मिल रहा है, उसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। एक ही रहेगा, आप हर बच्चे का एक नंबर है, वही आपको हर सब्जेक्ट में लिखना है। मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ वो ये है कि एग्जाम शुरू होने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन लिख के 5-6 शीट्स रेडी करके रखना, फिर एग्जाम लिखना शुरू करना, तो आपका टाइम बचेगा। और इन अ रश you can avoid making mistakes if you are prepared in advance. If you are not prepared in advance, you will have to rush during exam while you are writing, and then there is possibility of doing something wrong. Okay? Now about question paper. You will get two parts of the question paper. First is Google form and second is descriptive. Both are there and both are compulsory. Descriptive will be given in the way it has been told by other teachers. We are not going to do the descriptive paper on Google Forms. We want you to write in your own handwriting. Yes sir. Are you getting it? Yes sir. We don't want you to type answers every time. It is not only a question of testing you. अगर At the गूगल same फॉर्म time, में से we पेपर बनाएंगे तो गूगल फॉर्म में अगर टाइप करें गूगल से चीटिंग कर सकता है। वो तो बेटा आपकी ऑनेस्टी आपके साथ में है, हम तो आपके पास नहीं है। ये आपकी ऑनेस्टी सर गूगल फॉर्म में बच्चे दूसरा टैब खोल के वी ट्रस्ट आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमें अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है। हम इतना जानते हैं कि हम अपने बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देते हैं और हमारे बच्चे चीटिंग नहीं करते। ये हमारा फेथ है। अब हमारे फेथ को ट्रू प्रूव करना है नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। हम आपके पास नहीं हैं, ठीक है। हम जब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे तब ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ कैमरा खोल के बैठे रहो। मोबाइल पे व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, आप आराम से उसको गिवन टाइम में पेजेस पे उसके आंसर्स लिखेंगे, आप हमें सेंड कर देंगे, ठीक है।
आप कैसे लिख रहे हैं अपने सेल्फ सुपरविजन में करें और आपके पेरेंट्स के सुपरविजन में करें। वहां पे आपका इन्विजिलेटर आप खुद हैं और आपके पेरेंट्स आपके इन्विजिलेटर सर। हैं, हम लोग नहीं हैं। ठीक है, सर अब आप सर, जल्दी से दो पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर समझ लो बेटा, फिर हाँ बोल, जल्दी बोल। सर मैं बोल रहा हूँ सर, अगर हम पेपर लिखेंगे तो सर हमें स्क्रीन अपने सर वो पेपर के सेट करनी होगी, हमें अपनी स्क्रीन पेपर के सेट करनी होगी। नहीं, कहीं नहीं करना है, आप अपना करते रहना, कोई स्क्रीन कहीं सेट नहीं करना है। आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर हम शेयर करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है आप उसको खोल लेना, अपने सामने रख लेना। आप चाहे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर आपका व्हाट्सएप है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे खोलो, मोबाइल स्क्रीन पे है तो मोबाइल स्क्रीन पे खोलो, ठीक है, और अपना क्वेश्चन पेपर लिखना शुरू कर दो। सर क्लास ग्रुप में भेजेंगे बेटा वेद, हम जो क्वेश्चन पेपर भेजेंगे वो जो आपका क्लास ग्रुप है, ऑफिशियल क्लास ग्रुप जो है ना आप लोगों का, उसमें भेजेंगे, Yes, उसमें sir. शेयर करेंगे, ठीक है, और आप वहीं खोलो और उसके बाद में उसको लिखना शुरू कर दो जल्दी से। हाँ सर? बोलो चाहिए। यस सर अगर हम सर व्हाट्सएप पे जाके उससे देखेंगे सर पेपर को, तो सर हमारा कैमरा तो ऑफ ही हो जाएगा ना सर। जाने दो ना, मैंने बोला ना हमें नहीं चाहिए आपका कैमरा, आप बंद कर देना आराम से, मैं यहाँ से मीटिंग भी क्लोज कर दूंगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले ये बताया कि हमें अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है। आप अपना सेल्फ सुपरविजन करेंगे, आप अपने खुद के इन्विजिलेटर रहेंगे, आपके पेरेंट्स आपको सुपरवाइज करेंगे। आप पेपर कंप्लीट करके उसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके टाइम जैसे ही होगा हमें भेज देना। जितना टाइम हम आपको अलॉट कर रहे हैं उतने टाइम में आ जाएगा, हम उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको चेक कर देंगे। सर आधे ठीक है? घंटे में सेंड करना है ना? आधे घंटे बाद सेंड नहीं करना है, आधे घंटे में सेंड करना है सर, आधे घंटे नहीं के सर, अंदर अंदर सेंड करना है। वही बोल रहा हूँ सर। बेटा आपका पेपर कंप्लीट हुआ, आप 5 मिनट में अगर स्कैन करके और भेज देते हो, वेरी गुड। आप 6 मिनट में स्कैन करके भेज देते हो, वेरी गुड। आप 10 मिनट में भेज देते हो, वेरी नाइस, है ना भाई। कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, कहीं अपलोडिंग की प्रॉब्लम है, कहीं आप स्कैन इजीली नहीं कर पा रहे हो, आप कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम वेट करेंगे मैक्सिमम। हमने ये कभी नहीं बोला कि आधे घंटे के बाद भेजना है ठीक है, वो हमने एक मैक्सिमम टाइम दिया है कि हम उतने टाइम तक वेट करेंगे। आप 2 मिनट में भेज दो, ठीक है। गूगल फॉर्म के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, क्वेश्चंस हैं 20, ओके। आपको क्विकली उसे सॉल्व करना है। जैसे ही आपका गूगल फॉर्म कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबमिट एक ही बार होगा। डू यू ऑल नो दिस थिंग? यस सर। गूगल फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड ट्वाइस। यस सर। यस, Yes, सो sir. बी स्कोर तो केयरफुल। देख सकते हैं सर, हाँ, स्कोर तो हम देख सकते हैं सर, स्कोर तो Yes. देख सकते हैं सर, स्कोर। score you can see after it is submitted and after your second descriptive paper is also over. We are setting the time in that Google form that the scores will be visible to you only after the completion of entire exam. Because as soon as you submit your Google form in 15 minutes, just at that moment, question paper for descriptive will be sent on your WhatsApp. And you will get only 1 hour and 15 minutes time for completing the descriptive paper. Total exam is of 1 hour 30 minutes. 15 minutes are already passed in Google form. Now 1 hour and 15 minutes are remaining. If you start worrying about your score and you start checking your marks, how much did you score, then what will happen? You will waste your time. तो 15 मिनट उसमें चले जाएंगे। So what we have decided, we shall share the score. We shall share the score after the completion of your descriptive exam. Google फॉर्म का स्कोर भी बाद में शेयर होगा, ठीक है। फिर आराम से देखते रहना बैठ के, जितना देखना है ना। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो दिमाग में एक बात रहती, पहले स्कोर देख ले। सर रिजल्ट कब होगा सर? रिजल्ट, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? सर रिजल्ट डे सर कब होगा सर रिजल्ट? गूगल फॉर्म, अरे यार अखिल पहले तू ये समझ ले कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अखिल म्यूट कर अपना माइक, माइक म्यूट कर। रिजल्ट कब होगा अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम कम बचा है।
कि वो छोड़ के यू आर वरीड अबाउट रिजल्ट बेटा. फर्स्ट listen to what I am trying to explain. If you have any doubt about how to appear in exam, how to write paper, clear all those things. Don't worry about result. As soon as it is completed, it will be shared with you. In Google Form, you will get 20 questions, all carrying 1 mark, all multiple choice. Is this clear? Yes, All sir. multiple choice. Yes, sir. First question and second question will be grammar, gap filling, and reordering words and phrases to form meaningful sentences. That is what you call jumbled sentences. Yes, sir. Both contain four things, each carrying 1 mark, each having 4 options. You will have to choose best correct one option, appropriate option. Then question number 3 is, what is question number 3? 6 multiple choice questions of 1 mark each from literature, means from your textbook, from anywhere. Okay. Multiple choice questions, you understand? Sir, check the correct. Multiple choice questions, you understand? Suppose Sir, The the best Christmas present in the world. best Christmas present in the world. best Christmas present in the world. Okay. Suppose वो लेसन में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है. What is the name of Mrs. McPherson? अब मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, कॉनी, जेनी, रॉनी एंड समथिंग एल्स, कोई एक नाम हो, Connie. ठीक है. You will whatever you will have to, Connie. yes, so you will have to tick or click or press on the option where Connie is written. Now this was just to tell the questions that I am going to ask from literature are not going to be that simple. उतना सिंपल नहीं होने वाला है. आप तभी आंसर्स कर पाओगे जब आपने उस लेसन को एक बार पढ़ने के बाद एक बार और पढ़ा है, और उसके बाद फिर से एक बार पढ़ा है. Then only you will be able to answer those questions, otherwise not at all. There is no direct question. तो लिटरेचर में से मीन्स हनी ड्यू और जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है वो, और पोएम्स, कहीं से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में आएंगे 6. देन 4th एंड 5th क्वेश्चन जो हैं वो 2 एक्सट्रैक्ट्स हैं ऑफ 3 मार्क्स ईच. एक्सट्रैक्ट्स वो प्रोज के भी हो सकते हैं, पोएट्री के भी हो सकते हैं. 3-3 मार्क्स के 3-3 क्वेश्चंस रहेंगे दोनों एक्सट्रैक्ट्स में. बेस्ड ऑन दैट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. अगेन सिंपल नहीं होने वाले, सिंपल नहीं होने वाले, ठीक है, डिफिकल्ट होने वाले हैं. इसलिए बहुत थॉरोली उसको रीड करना, पूरा समझने की कोशिश करना. लाइंस जो लिखी हैं उसके बीच में उसका और क्या मीनिंग हो सकता है वो समझने की कोशिश करना. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी दी हुई है लेसन में वो सारी पढ़ लेना. उस लेसन में आसपास में कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है ना, रहती है या नहीं रहती है? Yes, कुछ sir. एक्स्ट्रा चीजें रहती है, बॉक्सेस बने रहते हैं. हाँ, Yes, sir. सो बी केयरफुल, बी केयरफुल. आपका जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के पेज के ऊपर अदर देन द स्टोरी देयर मे बी मेनी मोर थिंग्स, देयर मे बी मेनी मोर थिंग्स ऑन दैट पेज. मैं इतना क्लियरली हिंट दे दे रहा हूं आपको कि उस पेज के ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन में से मैं कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं. इट्स नॉट दैट द क्वेश्चंस विल बी simply taken from where what is given at the end of the lesson or clearly in the lines. जरूरी नहीं है, ठीक है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके ऐसे ही होंगे. ये हो गया आपका गूगल फॉर्म वाला पार्ट ए, जिसमें देयर आर 20 क्वेश्चंस. यू विल बी गेटिंग 15 minutes टाइम, ठीक है. इन एनी केस इफ यू टेक, if in any case you take 1 or 2 minutes extra, I have no problem.
आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आपको टाइम में सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब सबमिट कर दोगे तभी वो वाला मिलेगा, और उसके लिए आपको टाइम में बना 15 मिनट्स, है ना। अब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर अगेन इज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। उसमें क्या क्या है ये देख लो। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो राइटिंग सेक्शन होगा। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या है आपके सिलेबस में? लेटर टू एडिटर, स्टोरी राइटिंग। ओके, स्टोरी राइटिंग, है ना। तो आपको स्टोरी राइटिंग आएगा, मान लीजिए कुछ 120 वर्ड्स में आपको स्टोरी लिखना, 5 मार्क्स की स्टोरी आएगी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो स्टोरी के लिए आपको कोई सिचुएशन मिल सकती है, ओपनिंग लाइंस मिल सकती हैं, आउटलाइन मिल सकती है, या थीम मिल सकता है, या पिक्चर मिल सकती है। स्टोरी के लिए एक पिक्चर दे दिया, है ना, एक पिक्चर दे दिया, और उसके बाद में आपसे बोला कि बेस्ड ऑन दिस और व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, इन दिस इमेज, राइट अ स्टोरी। ठीक है, मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूं। ओके, मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूं। आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल की मैं अगर आपसे बोलूं कि क्रिएट अ स्टोरी ऑन दिस, कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, yes, sir. साईराम, Yes, sir. Yes, sir. Sir, कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, yes. आई जस्ट शेयर। yes, sir. नाउ राइट अ स्टोरी। Yes, sir. यस सर। देयर वाज अ बॉय नेम्ड, क्या था मैं भूल गया, सर्वज्ञ, and he was forced to attend online classes every day, and he had his class as 1:30, which was right after his lunch time. And after taking a heavy lunch, a sumptuous lunch, he felt like sleeping, but he was forced to attend the class. He has a nicely arranged shelf behind him where he has kept all his textbooks, but he doesn't use them, it seems. He was during the class yawning, and he was waiting for the time to get over. As soon as the class gets over, he may go and take some rest, and then so on. Seeing the picture, can you write a story? Yes, sir. Yes, Create sir. a story. Yes, sir. हाँ, ठीक है। Now second thing, there may be a theme. You may get a theme. What is a theme? The central idea. If I share a central idea, okay, and the idea is the burden of online classes on students. Yeah, burden of afternoon classes on students. Can you create a story? हो जाएगा सर। Yes, sir. There can be an opening line. There can be an opening line. For a story that Sarvagya was going to his grandfather's village for summer vacation. In his way, on the road, he found two very young kids
selling oranges. People were ignoring them. Nobody was buying oranges from them. Sarvagya felt sorry for them and he decided to dash 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 dash. Can you continue this story? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I hope this is clear to everyone. Story, the word limit that we are asking you to write your story in is about 100-120 words. Okay, and 5 marks. Now, second question in descriptive paper will be uh, 3 short answer type questions of 2 marks each from your textbook. Again, not direct questions. You must have heard that term from all teachers, epistemic understanding, not the contextual understanding, not memorizing the things, but trying to getting inside the causes of the behavior of the people. समझ में आया? समझ में आया? Yes. Why do you think Yes, sir. the giant became so selfish that he did not allow anybody to enter his garden? अभी ये क्वेश्चन का आंसर आपके स्टोरी में कहीं नहीं है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ. ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ. समझ में आया? इसका आंसर आपके स्टोरी में, आपके लेसन में, आपके टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है. बट क्या इसका आंसर नहीं हो सकता? हो सकता है. मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ है. हो सकता है. माय क्वेश्चन स्टार्टेड विद द फ्रेज हो सकता है. व्हाई डू यू, यस, व्हाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्यों वो किसी को अलाउ नहीं करता था? तो ये आंसर सबका अलग अलग होगा. Yes, sir. सबका अलग अलग होगा. Yes, sir. सबका रीजन अलग अलग हो सकता है. ठीक है. कोई कह सकता है कि उसको बच्चे पसंद नहीं थे. कोई कह सकता है कि उसको क्राउड पसंद नहीं था. कोई कह सकता है कि वो गंदगी लोनली करते रहना थे वो पसंद बच्चे. करता था. कोई कह सकता है कि उसके लाइफ में Yes, sir. गलती कुछ भी, उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता था. उसको शोर पसंद नहीं था. उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी कि कहीं नॉइस ज्यादा होता है तो उससे उसको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. कुछ भी रीजन हो सकता है ना. तो आप जब सोचोगे, आप जब रीजन क्रिएट करने की कोशिश करोगे और आप जब लिखोगे, तो फॉर सच क्वेश्चंस देयर इज neither a completely correct answer nor a completely incorrect answer. ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना तो कोई आंसर करेक्ट है ना कोई आंसर इनकरेक्ट है. करेक्ट कब है? करेक्ट कौन सा आंसर होगा कि जो भी आपने आइडिया शेयर किया, ध्यान से सुनो, whichever idea you shared, are you able to convince the examiner with your idea? उस आइडिया के साथ यू विल बी गिविंग सम आर्ग्यूमेंट. कोई रीजन दोगे ना कि आपको ऐसा क्यों लगा. विदाउट अ रीजन डोंट राइट एनी आंसर. विदाउट अ प्रॉपर सुटेबल एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट डोंट राइट एनी आंसर. ट्राई टू कन्विंस मी. इफ योर रीजन इज कन्विंसिंग, योर आंसर इज करेक्ट. इफ यू कुड नॉट कन्विंस, then your answer is not correct. You are not getting marks. If you ask me what is the correct answer to this question, there is no correct answer to this question. समझ में आया? समझ में आया? आप जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को, और अगर आपका आंसर जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड आंसर है, यू आर गेटिंग मार्क्स. हम आ गए हैं एपिस्टेमिक लेवल पे, नॉट कॉन्टेक्चुअल लेवल.
ठीक है, यू विल गेट 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसकी वर्ड लिमिट 20 to 30 वर्ड्स होगी, 2 मार्क्स ईच। ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे तो 6 मार्क्स का हो गया। 5 का ऊपर आ गया राइटिंग सेक्शन, स्टोरी राइटिंग आ गया आपका, 6 मार्क्स का ये आ गया, 11 हो गए। इसके बाद में यू विल गेट 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 of 5 मार्क्स, 1 of 4 मार्क्स। 5 मार्क्स का आपका हनीड्यू में से कहीं से भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वर्ड लिमिट उसकी वही 60-70 वर्ड्स में आपको लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन होगा, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन होगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने पास में रख के बैठोगे, ओपन रख के बैठोगे, तब भी आपको आंसर तो अपने ही मन से लिखना पड़ेगा। आप पूरा लेसन पढ़ लोगे दोबारा वहीं बैठ के टेक्स्ट बुक खोल के, आप आंसर उसमें नहीं ढूंढ पाओगे। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना आपको सेल्फिश जायंट से, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन लास्ट क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। वो आपका सप्लीमेंट्री रीडर के जो लेसन्स हैं उसमें से थीम बेस्ड क्वेश्चन होगा। थीम बेस्ड होगा मतलब अगेन वही कि डायरेक्ट नहीं होगा, एपिस्टेमिक स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। तो आपके पास कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? 4 क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्टिव पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन, सेकंड क्वेश्चन 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, फोर्थ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। बस इतना डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आपको टाइम मिलेगा 1 hour and 15 minutes, उसमें आपको इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद आप आराम से उसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे सेंड कर देंगे। आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर regarding the format of question paper. Excuse me, sir. Now if you have any question you can ask. Excuse me, sir. Excuse हाँ, I was waiting for you, सर, Akhil. स्टोरी राइटिंग में सर हमें थीम पर सर स्टोरी राइटिंग में सर हमें थीम सर खुद मिलेगी, मतलब सर सर लिखी लिखाई मिलेगी सर स्टोरी राइटिंग में हमें थीम? Yes, yes, yes. अगर देखो मैंने क्या बोला है, फिर से सुन लो। या तो आपको एक पिक्चर मिलेगी, जैसे मैंने अभी सर्वज्ञ की पिक्चर शेयर की थी, या कोई भी इमेज, है ना, या फिर आपको ओपनिंग लाइंस मिलेंगी, जैसा मैंने अभी केस शेयर किया था कि सर्वज्ञ वाज गोइंग टू हिज ग्रैंडपेरेंट्स विलेज फॉर समर वेकेशन एंड इन द वे ही सॉ दिस एंड डैश 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 डैश। आपको एग्जैक्टली उन्हीं लाइन से शुरू करना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है। दिस इज सेकेंड वे। थर्ड वे होता है आउटलाइन ऑफ द स्टोरी या प्लॉट ऑफ द स्टोरी, है ना। तो आउटलाइन ऑफ द स्टोरी में क्या होगा कि आपको ये बता दिया कि सर्वज्ञ वाज अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, फिर थोड़ा बीच में डैश डैश छोड़ दिया, फिर had few friends in the class, फिर कुछ थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, ठीक है। one of his friends was very, फिर छोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने नीचे लिख दिया कि फिर उसके बाद मैंने लिखा कि after few days that friend realized, फिर डैश डैश करके कुछ छोड़ दिया और फिर लास्ट में लिख दिया now they all have started working hard and they have scored good marks in examination. तो मैंने क्या किया आपको कि आउटलाइन दे दी, आउटलाइन दे दी, लेकिन बीच बीच में मैंने जो डैश डैश करके छोड़ा हुआ है ना, तो ये जो जहां जहां पे जो जो पॉइंट आइडियाज मैंने दिए हैं आपको, उन आइडियाज को लेते हुए उसी वे में आपको स्टोरी को डेवलप करते जाना है एंड देन द स्टोरी कैन बी कंप्लीटेड। दिस इज वन वे। तो इन एनी ऑफ दीज वेज स्टोरी कैन बी आस्क्ड। दे दिया है हमने, एक थीम दे दिया कि राइट अ स्टोरी ऑन, चलो सबसे कॉमन जो जैसे आप लोग हमेशा बात करते रहते हो, ऑनेस्टी। वो एंड वाला था आप लोगों की एक लेसन था, शायद 7th क्लास में था सप्लीमेंट्री रीडर में। यस सर।
उसमें से हमने थीम पिक कर लिया, सपोज हार्ड वर्क, सिस्टमेटिक, कोऑर्डिनेटेड, हार्ड वर्क। अब मैं आपको ये थीम दे दूं कि डेवलप अ स्टोरी ऑन द थीम सिस्टमेटिक, कोऑर्डिनेटेड, हार्ड वर्क। कैन यू क्रिएट अ स्टोरी? सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। दिस कैन बी अ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप, ऑफ अ क्लास एट अ स्कूल। सपोज 8 थे कि कुछ बच्चों का ग्रुप है, एंड देन these children were given some assignment or they took some project by themselves and they started working on that. ठीक है, suddenly they were working on that project, they went out, but they found in the villages that at this time of pandemic people are not getting many things that are necessary for them. Then this group suddenly stopped their project and decided of doing something to help them. Then they formed a bigger group. They started contacting people who were well-to-do, who were prosperous, and they started asking those people to help such people, and they became the mediators in that. They started collecting things from them and sending it, delivering it to those people who are in need. Now, for this, every morning they had to wake up at 4 o'clock. They had to go to people who were cooking food, preparing food, making packets. They had to go to their homes and collect food packets, then come back to one place, then distribute it to other group of boys who would carry these packets to those villages. तो इसमें क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन आ गया। कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया? इसमें हार्डवर्क आ गया। इसमें एक सिस्टमेटिक काम आ गया कि एक ग्रुप ये काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप ये काम कर रहा है, तीसरा ग्रुप ये काम कर रहा है। तो थीम आ गया आपका सिस्टमेटिक, कोऑर्डिनेटेड, हार्ड वर्क। से यस और नो? यस सर। Yes, sir. स्टोरी बन गई? Yes, स्टोरी sir. बन गई? Yes, sir. स्टोरी बन गई? Yes, sir. Yes, sir. स्टोरी कैन बी आस्क्ड इन एनी वे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं बच्चों ने, जस्ट अ मिनट। बेटा यू विल गेट चॉइस। कुछ बच्चे राइटिंग सेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है? यू विल गेट अ चॉइस, यू विल गेट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ व्हिच यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। ठीक है, 2-3 बच्चों ने ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। उसके बाद और एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वेयर वी हैव, आपके जो आंसर शीट है वो आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में अपने नाम से, आपके नंबर से, क्योंकि मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है। मैंने कल इसीलिए आपसे नंबर लिए, ठीक है? तो आपको अपने उसी नंबर से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपनी आंसर शीट को शेयर करना है। वो पूरा मैं एक जगह कंपाइल करके फिर उनके प्रिंट आउट्स निकाल के और उसके बाद में हम उसका करेक्शन करेंगे, ठीक है? अच्छा, और क्या पूछा है? बेटा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा अंकुश ने कि आफ्टर सेंडिंग द पीडीएफ डू वी हैव टू वेट? बेटा यू डोंट हैव टू वेट एट ऑल। आपने पीडीएफ भेज दी ना, आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। आप तो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम आपको जब गूगल फॉर्म शेयर करेंगे तो गूगल मीट पे शेयर करेंगे, यहीं पे चैट बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूंगा, यहीं पे आपको क्लिक करके ओपन करना और यहीं पे सबमिट करना है, ठीक है? गूगल फॉर्म आप जब कर रहे हो तो आप गूगल मीट पे लाइव हो मेरे सामने। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका और जब मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगा तो वो व्हाट्सएप आपके मोबाइल फोन में भी हो सकता है या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी हो सकता है। आपको जब उसको पेपर को ओपन करना है तो आपकी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो आपको गूगल मीट से, बाकी क्लास से कोई लेना देना नहीं है। और हमने बोला है कि हमें भी आपको सुपरवाइज नहीं करना है, आप खुद ही सेल्फ सुपरवाइज कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो आप आराम से उसको गूगल मीट को बंद कर सकते हो और
उस व्हाट्सएप पे भेजे हुए क्वेश्चन पेपर को खोल के अपना सॉल्व करो और फिर उसको स्कैन करके व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो। तो गूगल मीट पे रहने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट देयर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है अंकुश, समझ में आ गई बात? यस सर, यस सर। अब फिर से वेद ने दोबारा यही क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर मैं दे चुका हूं। नियति ने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि ये बेटा आप पहले भी तो पूछ चुके हो नियति? नहीं, अभी लास्ट में ही पूछा है ना, तो मैंने दे दिया आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, आइदर लेटर और स्टोरी और 2 स्टोरीज। आपको करना एक ही है। ओके सर। ठीक है, चलो, तो इट इज ऑलरेडी 2:16। अब सीधे हम एग्जाम में मिलेंगे। उसके बीच में अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमारा इंग्लिश का ग्रुप है, हमारा क्लास का ग्रुप है, आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, अपने डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। ओके सर। ठीक है, और ज्यादा जरूरत लगे तो हम जब उस ग्रुप पे कॉमन बात होगी, क्वेश्चन ग्रुप में ही डालना। जो क्वेश्चन आपने पूछा हो सकता है वही प्रॉब्लम किसी और को भी हो, तो जब एक बच्चे को आंसर मिल गया तो सबको मिल जाएगा, है ना। आप अलग अलग पर्सनल नंबर पे अपने डाउट्स मत पूछना। पर्सनल नंबर है आंसर शीट शेयर करने के लिए, और ये जो मैं आप लोगों के कोड्स शेयर करूंगा उसके लिए। डाउट्स पूछने के लिए क्लास ग्रुप है, उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे ही आंसर मिलेगा, तो बाकी बच्चे भी उसको देख सकते हैं। यस ऋषिका? सर आप कोड कब भेजोगे? अभी, आज। अभी मेरी क्लास है 11th क्लास ले लूंगा मैं, उसके बाद में मैं भेज दूंगा। ठीक है, आज ही भेज दूंगा। शाम तक जिसको नहीं मिले मुझे कांटेक्ट कर लेना। शाम तक जिसके पास कोड नहीं पहुंचे मुझे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं सबको सेंड कर दूंगा जिनका मेरे पास नंबर है। जिन्होंने मेरे पास नंबर नहीं भेजा है उनको तो मैं कर ही नहीं सकता। ओके, अपने डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो ग्रुप में एनी टाइम, एग्जाम होने तक कभी भी पूछ लेना, किसी भी वक्त डाल देना। जब भी मैं देखूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं उसका आंसर उस पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, नाउ यू कैन स्टॉप, यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।